So good morning all of you. So in previous classes we are studying about the planning and organizing at the supervisory level. Okay. So today in this level only we can see about the budget for the material and the manpower. So in that supervisory level planning, so we have seen planning for supervisor, planning activities, detailing and following of each steps in previous classes, also prescribing standard forms for various activities and the budgeting. In budgeting, today we will see the budgeting of material and the manpower. So, the objective of manpower planning, uh, sorry, before that, we are going to that, we will see uh, making a material budget for given production activity. So, how to prepare a production budget, we will see today in this presentation. So we'll come to know how the planning of or budgeting of the material is done. The content of this today's lecture is material planning for or budgeting. How to calculate your material purchase budget, real life example material purchase budget you will see, and a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. You know, we have seen this statement in previous class also. Is direct material purchase budgeting refers to the purchase of preparing material or purchase budget in terms of quantity and money value of material to be produced procured in a specified time and period. So direct material purchase budgeting refer to procedure of preparing material of or purchase budget in terms of quantity and money value for materials to procure in a specified time of period. It helps in estimating the material expenditure over a period of time and also analyzes the materials requirement. So direct material purchase budget we can make, and it helps to estimate the material expenditure, कितना खर्चा हमारा मटेरियल परचेसिंग में लगेगा और एज पर द टाइम के हिसाब से, एंड ऑल्सो वी कैन एनालाइज कि कितना मटेरियल हमको कब लगने वाला है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है. दैट इज कम अंडर द मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग. बजटिंग मीन्स in terms of money we have to give some cost or amount to purchase that requirement. Okay, so proper material budgeting is of utmost importance because it adds up the production cost to an organization. By budgeting you can control the cost. By budgeting you control. Budgeting यानी पहले से हम तखमीना निकालना या खर्चा निकालना कि हमको कितना खर्चा आगे होने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजटिंग, है ना. चाहे आप बजटिंग एक महीने का बनाइए, चाहे आप साल भर का बनाइए, चाहे आप 6 महीने का बनाइए, चाहे आप 3 महीने का बनाइए, है ना. हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो बजट है पूरे हिंदुस्तान का, वो मार्च में रिलीज़ होता है ना. उसकी प्लानिंग साल भर चलती है और नेक्स्ट एकेडमिक नेक्स्ट ईयर जो है, जो कमर्शियल ईयर है, हमारा मार्च से शुरू होता है, मार्च में एंड होता है. तो उसके लिए वी आर डूइंग द बजटिंग, है ना. और हम लोग सुनते हैं कि ये महाराष्ट्र का बजट है,
ये एनडीए का बजट है। एनडीए के बजट में रेलवे का इतना खर्चा आएगा, इतना फ़ायदा होगा, यहाँ पे चीज़ें और बनेगी, नए रेलवे शुरू होंगे, है ना। इसी तरह कोई बड़ा हॉस्पिटल वगैरह बनाना है, कुछ और ऐसा है काम जो डेवलपमेंट का है, डैम्स है, रोड्स है, इनके सब पूरे प्लानिंग और बजटिंग वो साल भर पहले हो जाते हैं। इरिगेशन में कितना पैसा डालना है, एग्रीकल्चर में कितना पैसा डालना है, रोड्स वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा डालना है ना, पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक डेवलपमेंट में कितना पैसा डालना है। ऑल दिस कम हेड्स इनटू द बजटिंग। इसी तरह जब हम कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सर्टेन रॉ मटेरियल भी रिक्वायर्ड, एंड दैट इज नथिंग बट द मटेरियल, एंड फॉर मटेरियल वी नीड अ बजटिंग, है ना। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, है ना। अब हमको एक घर बनाने के लिए हम फाउंडेशन से शुरू करते हैं, 1 महीने में हमारा फाउंडेशन और फिलिंग और बैक फिलिंग का वर्क होगा। तो उसके लिए 1 महीने का हम समझ लो बजट बनाएंगे, सीमेंट इतना लगेगा, बैक फिलिंग मटेरियल इतना लगेगा, शटरिंग मटेरियल इतना लगेगा, है ना, स्टील इतना लगेगा, और एग्रीगेट और सैंड इतने लगेंगे। ऑल दिस कम इनटू द मटेरियल बजटिंग, है ना। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि मैन पावर इतना इतना लगेगा तो वो किस में आ जाएंगे, मेन पावर बजटिंग में। तो डायरेक्ट मटेरियल रिफर्स टू द सप्लाईज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी बनाने के लिए गुड्स को, एंड प्रोडक्ट को, उसके लिए जो डायरेक्ट मटेरियल्स लगते हैं, जो रॉ मटेरियल लगते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल एंड कैन आल्सो रिगार्डेड एज अ रॉ मटेरियल्स एंड जो स्टोर्स स्टॉक एंड प्रोडक्टिव मटेरियल्स। तो जो भी मटेरियल हमको लगते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्शन में कोई भी, तो दैट विल बी द रॉ मटेरियल, और उसका बजटिंग इज कॉल्ड एज डायरेक्ट बजटिंग। ओके, तो डायरेक्ट बजटिंग इज we will do before starting of or before commencement of our production of our material, yeah, product, you can say, not material, your product, production of your product। तो हम पहले से महीने भर के काम के लिए हमको जो जो चाहिए, सीमेंट जितना चाहिए, एग्रीगेट जितना चाहिए, सैंड जितना चाहिए, हम वो पहले से स्टॉक करके रख लेते हैं, हाँ। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड मटेरियल कंज्यूम देयरिंग बेस्ड फॉर यूनिट आउटपुट। अभी किस पे डायरेक्ट मटेरियल परचेस किस बजट किस पे डिपेंड है कि हमको अगर महीने भर का आप बजट बना रहे हैं तो महीने भर में कितना रॉ मटेरियल हमको लगेगा, कितना कंज्यूम होगा। तो इस तरह हम प्लानिंग करेंगे और उसके हिसाब से हम बजटिंग करेंगे। मटेरियल बजटिंग इंश्योर्स लो रिस्क ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग, है ना, हाईएस्ट परचेस लीड टाइम, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड बेटर वेंडर रिलेशन। तो मटेरियल बजटिंग अब ऐसा नहीं है, देखिए अगर हमको कुछ पहले भी मैंने बताया कि हमको कोई चीज़ बनाना है तो उसमें हमको डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल लगते हैं, टूल्स लगते हैं, मशीन लगती है। अब हम उन्हें, हमारे पास मशीन है, टूल्स है, सब है, मटेरियल जो प्रोडक्ट हमको बनाना है और उसका रॉ मटेरियल नहीं है, समझ लो हमको महीने भर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और हमने आधे महीने का यानी 15 दिन का सिर्फ फोर्टनाइट का खरीद के रखा है, तो आगे 15 दिन का पहले से प्लानिंग रहना चाहिए कि ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले हमारे पास स्टोर में या स्टॉक में अवेलेबल रहना चाहिए वो मटेरियल। तो उसका प्लानिंग हम करेंगे। या फिर 3 महीने में हमको इतना प्रोडक्शन बनेगा तो हर महीने का डिफरेंट क्या कितना कितना आउटपुट आएगा उसको बना के रखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज द बजटिंग, है ना। तो मटेरियल बजटिंग अगर हम बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि टू कैलकुलेट योर डायरेक्ट मटेरियल परचेस बजट यू विल नीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले क्या क्या ये सब मालूमात आपको चाहिए जब भी आप अगर डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाएं। योर प्रोडक्शन लेवल, यानी तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल क्या है, इस कैन फाउंड इन योर प्रोडक्शन बजट। तो तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल क्या है, यानी तुम्हारी मशीन कितना प्रोडक्ट दे सकती है? तुम कितना प्रोडक्ट बना सकते हो, दैट इज लेवल ऑफ योर प्रोडक्शन इन अ मंथ और इन अ वीक, वट एवर यूर
क्राइटेरिया में भी। Beginning direct material inventory, you will find this is the production budget of the most recent period that was completed. अब पहले से हमने कुछ मटेरियल परचेस करके रखा है और वो हमारे पास कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री। तो प्रीवियस जो बची है वो नए के लिए क्या होगा, वो बिगिनिंग होगी। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल्स इन्वेंट्री, यानी हमारा प्रोडक्शन होने के बाद आखिरी में कुछ मटेरियल हमारा बचा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट मटेरियल्स इन्वेंट्री। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल डेट गो इनटू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में जाएगा उसका उसका भी हमारे रिक्वायरमेंट रहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और कॉस्ट उसका हमको निकालना आना चाहिए, क्योंकि बजट हम जो भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी देते हैं, मॉनेटरी बेस पे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस यूज द मटेरियल बजट फॉर अ स्मॉल पोट्री बिजनेस एज योर रिक्वायर। पोट्री बिजनेस बोले तो क्या, हाँ, पोट्री बिजनेस मीन्स कि जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन हम लोग बनाते हैं, किले के बर्तन, चाइना किले के, हमारे यहाँ घरों में प्याली होती है, कुछ सालन के बर्तन होते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुछ डेकोरेटिव बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग प्लांट या फ्लावर लगाते हैं। तो पोट्री बिजनेस इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हम बनाते हैं उसको हम पोट्री बिजनेस। ये देखिए, अगर आप कुम्हार को हम लोग क्या बोलते हैं, वो मिट्टी का बिजनेस बनाते हैं, वो कुम्हार कहलाते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम पोएट्री बिजनेस को बोलते हैं। तो ये फिगर आपको दिख रही होगी, है ना, तो किस तरह मिट्टी के बर्तन बनते हैं छोटे छोटे, तो उसको पोट्री, छोटे बर्तन जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोट्री बिजनेस, है ना। तो उसके ताल्लुक से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। द बजट यूनिट्स of poetry are to be produced in each following 4 quarters। तो अब वो जो हमको पोट्री बनाना है कि हर क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स क्या, अगर साल का 4 हिस्सा करें तो एक क्वार्टर में कितने महीने आएंगे, एक क्वार्टर में कितने महीने आएंगे, एक क्वार्टर में 3 महीने आएंगे, दूसरे क्वार्टर में 3 महीने, तीसरे क्वार्टर में 3 महीने, और चौथे क्वार्टर में 3 महीने, यानी साल का 12 महीना होता है। अगर हम एक क्वार्टर बोले तो कितना हो गया, इट इज अराउंड 4 मंथ। Ahmad, what is the time you are late for joining? Huh?